Deep beneath the mountains of western Iran, far below anything visible from space, an immense underground complex stretches through solid rock. Hundreds of meters down, protected by layers of reinforced concrete and stone, long tunnel corridors branch outward in every direction. Inside them, mobile launch platforms stand in organized rows. Ballistic missiles rest vertically, warheads angled upward, waiting. The lighting is harsh and artificial. Air circulates through industrial ventilation shafts. Armed Revolutionary Guard units patrol continuously. Engineers and technicians rotate through shifts that never stop. Day and night blur together, because Tehran made a choice. A choice that is quietly altering the military balance of the Middle East. A choice now alarming intelligence services across Israel, Europe, and the United States. Iran is rebuilding its ballistic missile force at a pace far beyond what analysts believed possible. And according to intelligence assessments, shared among Western allies as recently as this week, Tehran is racing toward a number that reshapes everything. 2,000 operational ballistic missiles. Enough to saturate any missile defense network. Enough to overwhelm layered interceptors. Enough to permanently change how war is calculated in the region. And the most unsettling part is this. Iran is close. To understand how this moment came into being, you have to go back to June 2025, to the 12-day war between Israel and Iran. At the time, it was widely described as the blow that would neutralize Iran's missile threat for a generation. In the early hours of June 13th, Israel, supported directly by the United States, launched one of the most intense air campaigns the region had seen in decades. The target list was exhaustive. American stealth bombers struck deeply buried nuclear sites at Fordow, Natanz, and Isfahan using massive bunker-penetrating weapons. Israeli aircraft simultaneously hit missile factories, storage depots, and launch sites spread across multiple provinces. The strikes were methodical and relentless. For 12 straight days, waves of aircraft pounded Iranian military infrastructure. When the operation ended, Benjamin Netanyahu addressed the world with confidence. He declared that Iran's missile manufacturing capacity had been dismantled. He said dozens of factories had been destroyed. He insisted the threat of mass missile attacks against Israel had been eliminated. For a short time, much of the Western world accepted that conclusion. Headlines spoke of Iran's military power being set back by years. Television analysts described the campaign as crippling. Inside intelligence agencies, however, a very different assessment was already taking shape. The strikes were devastating, but they were not decisive. Above-ground facilities were wrecked, visible production lines were destroyed. But Iran's missile program was never designed to exist only on the surface. For decades, Tehran had prepared for precisely this scenario. Its infrastructure was deliberately fragmented, dispersed, and buried. Many of its most critical installations were carved deep into mountains, far beyond the reach of conventional munitions. These so-called missile cities survived. And during the war itself, Iran expended a significant portion of its arsenal. Over the 12 days of fighting, Iranian forces launched roughly 500 ballistic missiles toward Israeli population centers. Some also struck Al Udeid Air Base, the largest American installation in the region, an attack that shocked planners, who believed such bases were safely out of range. The scale of the damage inside Israel became one of the factors pushing all sides toward a ceasefire on June 24th. Donald Trump later acknowledged publicly that Israeli cities had taken heavy hits in the final days of the war. When the fighting stopped, Israeli intelligence estimated Iran still possessed around 1,500 ballistic missiles and roughly 200 mobile launchers. That was a substantial reduction from pre-war levels, but it was not elimination. And that distinction proved critical. Reconstruction began almost immediately. Not months later, not even weeks later. Within days of the ceasefire, surviving facilities shifted to continuous production. Underground assembly lines restarted beyond the reach of satellites or drones. And Iran turned to the one thing it urgently needed: raw materials. That is where China entered the picture. Within weeks, European intelligence services detected unusual shipping patterns between Chinese ports and Iran's port of Bandar Abbas, Tehran's primary logistics hub on the Persian Gulf. Cargo vessels were delivering large quantities of a chemical few outside defense circles recognize, but which missile engineers understand instantly: sodium perchlorate. By itself, it sounds innocuous. In reality, it is the essential precursor to ammonium perchlorate, the oxidizer that makes modern solid fuel rocket motors possible. Without it, you cannot manufacture solid rocket fuel. Without solid fuel, you cannot build modern ballistic missiles. And without modern solid fuel missiles, Iran loses the most survivable element of its deterrent. This matters because older liquid fuel missiles require hours of preparation at launch sites, making them vulnerable to preemptive strikes. Solid fuel systems can be stored ready to fire, moved through tunnels, and launched within minutes from mobile platforms. They are harder to detect, harder to destroy, and vastly more dangerous. China was supplying Iran with enough sodium perchlorate to support the production of hundreds of these missiles. And deep underground, shielded from view, Iranian crews were already putting it to use.
CNN ने इस छुपी हुई सप्लाई चेन पर अब तक की सबसे गहरी इन्वेस्टिगेशन की। इस रिपोर्ट के लिए यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्सेज, शिप ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, कमर्शियल सैटेलाइट इमेजेस और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सितंबर 2006 से लेकर अब तक चाइनीज पोर्ट से बंदर अब्बास तक 10 से 12 अलग मैरीटाइम शिपमेंट्स पहुंच चुकी हैं। इन शिपमेंट्स में तकरीबन 2000 मेट्रिक टन सोडियम परचलोरेट डिलीवर किया गया। इसका मतलब समझने के लिए एक मिसाल काफ़ी है। जेफरी लुइस, जो मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के ईस्ट एशिया नॉन प्रोलाइफरेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, के मुताबिक 2000 टन सोडियम परचलोरेट से तकरीबन 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स का फ्यूल तैयार हो सकता है। यानी चंद महीनों में चाइना से ईरान तक 500 मिसाइल्स के लिए रॉ मटेरियल शिप के ज़रिए पहुंच गया। और ये पहली डिलीवरीज नहीं थीं। फरवरी 2025 में जंग शुरू होने से पहले ही 8000 टन सोडियम परचलोरेट ईरान पहुंच चुका था। उसके बाद और 1000 टन भी आ गया। अप्रैल 2025 में बंदर अब्बास पोर्ट पर एक शदीद धमाका हुआ जो गलत तरीके से स्टोर की गई सोडियम परचलोरेट की वजह से हुआ। इस हादसे में तकरीबन 70 अफराद जान से गए और सैकड़ों जख्मी हुए। इस एक्सप्लोजन ने कुछ देर के लिए दुनिया को इन केमिकल ट्रांसफर्स का स्केल दिखा दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इससे शिपमेंट्स रुकी नहीं। जंग के बाद डिलीवरीज और तेज़ हो गई, हत्ता कि सितंबर 2025 के आखिर में जब यूनाइटेड नेशंस ने JCPOA स्नैपबैक मैकेनिज्म के जरिए सख्त इंटरनेशनल सैंक्शंस दोबारा लगाए। ये सैंक्शंस खास तौर पर ईरान के मिसाइल और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स को रोकने के लिए थे। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1929 वज़े तौर पर कहती है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा और ऐसा मटीरियल रिसीव नहीं करेगा जो इस प्रोग्राम में मदद करे। मसला ये था कि अमोनियम परचलोरेट तो बैंड लिस्ट में था, लेकिन सोडियम परचलोरेट जो उसका सीधा प्रिकर्सर है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। इसी लूपहोल को चाइनीज़ कंपनीज़ ने पूरी बेरहमी से एक्सप्लॉइट किया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने चाइनीज़ सप्लायर्स, फ्रंट कंपनीज़ और कार्गो वेसल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आइडेंटिफाई किया। कुछ शिप्स पहले से US सैंक्शंस के अंडर थीं। शिप ट्रैकिंग डेटा से यह भी पता चला कि कई दफ़ा ट्रांसपॉन्डर्स बैंड किए गए और गलत पोर्ट कॉल्स किए गए ताकि असली डेस्टिनेशन छुपी रहे। 2025 के एंड तक मुख्तलिफ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एक ही नतीजे पर पहुंच चुकी थीं। ईरान अपना कम अज़ कम आधा प्री वॉर मिसाइल स्टॉक पाइल दोबारा बना चुका है और प्रोडक्शन रुकने की कोई आसार नहीं। ईरानियन ऑफिशियल्स ने इस बात को छुपाया नहीं बल्कि फ़ख्र से बयान किया। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने खुलेआम कहा कि ईरान की मिसाइल पावर जंग के वक्त से कहीं ज़्यादा है। डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ नसीरज़ादे ने भी कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बेहतर हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक मालूमात अली वैज़ से आई, जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक ईरानियन ऑफिशियल्स ने सीधा बताया कि मिसाइल फैक्ट्रीज छोटे से साथ काम कर रही हैं। ईरान का मकसद सिर्फ रिबिल्ड करना नहीं बल्कि ऐसी सलाहियत हासिल करना है कि अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट में एक ही वक्त में 2000 मिसाइल्स फायर की जा सकें ताकि इजरायली मिसाइल डिफेंसेस पूरी तरह सैचुरेट हो जाएं। इस स्ट्रेटजी का लॉजिक सीधा है। जून की 12 दिन की जंग में जब ईरान ने तकरीबन 500 मिसाइल्स, ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल्स यूज़ किए तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अपनी हद पर पहुंच गया। अमेरिका ने थार्ड बैटरीज डिप्लॉय की, नेवी डिस्ट्रॉयर्स ने SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर्स फायर किए और इसराइल ने आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 सब एक साथ एक्टिवेट किए। इस डिफेंस की कॉस्ट हैरत अंगेज थी। हर थार्ड इंटरसेप्टर का खर्चा तकरीबन $5 मिलियन है। सिर्फ थार्ड पर $35 बिलियन से ज़्यादा लग गए। US नेवी ने तकरीबन $3 बिलियन के इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। 2 हफ्तों से कम अरसे में US आर्मी की टोटल थार्ड स्टॉक का 25% से ज़्यादा ख़त्म हो गया। पेंटागन के लिए ये एक वेकअप कॉल था। अगर ईरान के साथ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इतनी इन्वेंट्री ड्रेन हो सकती है तो ताइवान या कोरियन पेनिनसुला जैसे फ्रंट्स पर क्या होगा। इसी वजह से ईरान का नतीजा सीधा है, ज़्यादा मिसाइल्स, तेज़ प्रोडक्शन, कम कॉस्ट और डिफेंस को नंबर से ओवरवेलम करना। अब आ जाते हैं फरवरी 2026 पर। इस हफ्ते वाशिंगटन, जेरूसलम और यूरोप के कैपिटल्स में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं। 10 फरवरी को इजरायली ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर्स को ब्रीफ किया कि बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन जा रहे हैं और उनके पास नया इंटेलिजेंस है कि ईरान चंद हफ्तों या महीनों में 100 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हासिल कर सकता है। इजरायली सोर्सेज के मुताबिक अगर कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन ना हुई, मिलिट्री या दूसरी, तो 2000 मिसाइल थ्रेशोल्ड बहुत करीब है। और कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि शायद ईरान इस लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हो। कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी अब उन रिपोर्ट्स की तस्दीक कर रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने क्लासिफाइड चैनल्स के जरिए शेयर कर चुकी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन जो अर्ली फरवरी 2026 में पब्लिश हुई ने कमर्शियल सैटेलाइट फ़ोटोज़ का जायज़ा लिया जो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को क्लोजली ट्रैक करने वाले लीडिंग एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक
12 दिन की जंग के दौरान अमेरिका या इसराइल के निशाने पर आने वाली 2 दिन से ज़्यादा लोकेशंस में से आधी से ज़्यादा साइट्स पर एक्टिव कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हो चुका है। कुछ मकामत पर सीज़ फायर के चंद दिन बाद ही रिपेयर्स स्टार्ट हो गए हैं, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मिसाइल प्रोडक्शन ईरान के लिए सबसे बड़ी शॉर्ट टर्म नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। चैनल 14 इसराइल ने सैटेलाइट इमेजरी, अल्मा इंस्टीट्यूट फॉर मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ की रिसर्च और इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की डायरेक्ट तस्दीक के ज़रिए रिपोर्ट किया कि ईरान के पास 25 की साइट्स हैं जहां लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। हर एक साइट में गहरी अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सरफेस और सब सरफेस डैमेज के बावजूद तमाम मेजर लॉन्च बेसिस पर रिकवरी और दोबारा ऑपरेशनल एक्टिविटी के वाज़ेह साइंस नज़र आ रहे हैं। नतान्ज में पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर अब एक सेफ्ड रूफिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। इस्फहान के करीब एक कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंसेस पर बैरियर्स इंस्टॉल किए गए हैं। नातान्ज के पास अंडरग्राउंड टनल एंट्रेंसेस को रीइंफोर्स और एक्सपेंड किया गया है। परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जहां हिस्टोरिकली न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रिगर्स से मुतालिक हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट्स किए जाते रहे हैं, वहां भी नई एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। लेकिन ईरान सिर्फ प्री वॉर लेवल्स तक रीबिल्ड नहीं कर रहा, वो उनसे कहीं आगे जा रहा है और यहीं से ये कहानी अपने सबसे खतरनाक फेज़ में दाखिल होती है। सबसे तशवीशनाक प्रोजेक्शन इसराइल डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस ब्रांच से आई है। IDF के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह असेसमेंट 12 दिन की जंग के दौरान पब्लिक किया था। उन्होंने वार्निंग दी कि ईरान के पास 8000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक वाज़ेह और एक्शनेबल प्लान है जिसका मकसद इसराइल को तबाह करना है। उन्होंने स्केल समझाते हुए कहा कि जंग के एक रात के हमले में सिर्फ डोजन्स मिसाइल्स इस्तेमाल हुए थे। अब तसव्वुर करें जब हज़ारों हो जाएं। न्यू जर्सी के साइज़ के बराबर मुल्क पर 10,000 मिसाइल्स का मतलब क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ईरान की एम्बिशंस सिर्फ रीजनल डोमिनेंस तक महदूद नहीं, यह हिस्सा मिडल ईस्ट के साथ साथ हर वेस्टर्न कैपिटल के लिए कंसर्न होना चाहिए। हडसन इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2026 में एक डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश की जिसमें यह नतीजा निकाला गया कि ईरान सिर्फ शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स ही नहीं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कैपेबिलिटी पर भी सिस्टमिकली काम कर रहा है, यानी 10,000 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा रेंज। इस किस्म की मिसाइल पेरिस, लंदन, बर्लिन या वाशिंगटन DC तक पहुंच सकती है। ईरान का स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, जो रॉकेट्स यूज़ करता है जिनमें प्रोपल्शन, स्टेजिंग और गाइडेंस टेक्नोलॉजीज बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसी होती हैं, इस मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए एक कन्वीनियंट सिविलियन कवर प्रोवाइड करता है। 12 दिन की जंग के बाद से उसने चाइना और रशिया दोनों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप्स को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक गहरा कर दिया है। यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान चाइना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में वज़ेह इजाफा डॉक्यूमेंट किया है, ख़ास तौर पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के हवाले से। रशिया भी इस सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुका है। ईरान ने रशिया को 100 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए जो यूक्रेन के खिलाफ यूज़ हुए। इसके बदले में ईरान को रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ और UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो प्रोटेक्शन मिल रही है। चाइना और रशिया मिलकर ईरान को फाइनेंशियल सपोर्ट, रॉ मटेरियल्स और पॉलिटिकल कवर फराहम कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न सैंक्शंस का जोन में कुछ भी कहते रहें। साथ ही ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क को भी मुंतकिल करता जा रहा है। येमेन के हूथी रिबल्स ने ईरानियन सप्लाइड मिसाइल्स सऊदी अरेबिया और UAE पर फायर किए और रेड सी और बाब एल मंदिब स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाया, जिससे ग्लोबल ट्रेड को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और शिपिंग कंपनीज को अफ्रीका के गिरद लंबा रूट लेना पड़ा। हौतीस ने हाल ही में नए मिसाइल वेरिएंट्स दिखाए जो डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक डायरेक्ट ईरानियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का नतीजा है। ईरान ने हिजबुल्लाह, लेबनान, इराक और सीरिया की एलाइड मिलिशियस और बशार अल असाद की फॉर्मर सीरियन गवर्नमेंट को भी मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी सप्लाई की है। इसका मतलब ये है कि ईरान का बैलिस्टिक थ्रेट सिर्फ उसकी बॉर्डर्स तक महदूद नहीं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनल स्ट्राइक नेटवर्क है। अगर ईरान, येमेन और दूसरी प्रॉक्सी पोजीशन से एक ही वक्त में कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च हो तो यह सिर्फ ईरान से 2000 मिसाइल्स फायर होने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल डिफेंसिव चैलेंज पैदा करेगा, क्योंकि थ्रेट्स मल्टीपल डायरेक्शन से एक साथ आ रहे होंगे। इस क्राइसिस के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों पहलू अब एक ही वक्त में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने ओमान में इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस शुरू कर दी हैं, जिनका पहला राउंड अर्ली फरवरी में हुआ। ईरान का जोर है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद रहे। अमेरिका, जिसे इसराइल की स्ट्रॉन्ग बैकिंग हासिल है, एजेंडा को बैलिस्टिक मिसाइल्स, रीजनल बिहेवियर और ह्यूमन राइट्स तक फैलाना चाहता है। फरवरी में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरजानी ने ओमान का दौरा किया और खुलेआम कहा कि ईरानियन मिसाइल्स ने इजरायली रजीम को उसकी जगह दिखा दी है। उन्होंने वाज़े तौर पर मिसाइल कैपेबिलिटीज़ पर किसी भी किस्म की नेगोशिएशन को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। इसी वक्त सैटेलाइट इमेजरी ने पर्शियन गल्फ रीजन में एक तेज़ी से बढ़ता हुआ अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप दिखाया। फरवरी के शुरू के इमेजेस के मुताबिक एडिशनल फाइटर स्क्वाड्रंस, एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट,
हेवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज कटार, जॉर्डन और दूसरी रीजनल बेसिस पर डिप्लॉय की जा रही हैं। अल उदैड एयरबेस, जहां ईरान ने 12 दिन की जंग के दौरान स्ट्राइक की थी, वहां फरवरी के इमेजेस में पेट्रियट सिस्टम्स M983 हेवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स पर माउंटेड नजर आए। साथ ही एक RC-133 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, 3 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट्स, 8 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 7 C-17 हेवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मौजूद थे। सिर्फ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की तादाद जनवरी से फरवरी के दरमियान 14 से 18 हो जाना इस बात का इशारा था कि अमेरिका सस्टेन्ड लॉन्ग रेंज एयर ऑपरेशंस के लिए पोजीशनिंग कर रहा है। मुआफक सल्ती एयर बेस पर फरवरी के सैटेलाइट शॉट्स में 70 F-15 फाइटर जेट्स, 8 A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 4 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट्स और 4 अनआइडेंटिफाइड हेलीकॉप्टर्स देखे गए। उधर ईरान भी पीछे नहीं था। इरानियन ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी को बंदर अब्बास के करीब जनवरी 27 और फिर फरवरी 10 को सैटेलाइट इमेजरी में देखा गया, जो इस बात का सिग्नल था कि तेहरान भी नावल एसेट्स को पोटेंशियल एस्केलेशन के लिए पोजीशन कर रहा है। दोनों तरफ से तैयारी खुली और जानबूझकर हो रही है, जैसे कि डिप्लोमेसी के फेल होने और अगला कॉन्फ्लिक्ट पिछली 12 दिन की जंग से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान बिल्कुल रियल हो। इसराइल ने अपना अपग्रेडेड डेविड्स स्लिंग सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट किया है और अब आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्टर को फील्ड करने की तैयारी कर रहा है, जो इनकमिंग मिसाइल्स को किनेटिक इंटरसेप्टर्स के मुकाबले में बहुत कम कॉस्ट पर डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी स्ट्रेटेजिक हकीकत है जिसे कोई डिफेंस सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस्ड हो और कोई डिप्लोमेटिक डील चाहे कितनी ही नीयत से की गई हो, अपने आप तब्दील नहीं कर सकती। मिसाइल डिफेंस मैथमेटिकली एक लूजिंग गेम है जब अटैकिंग साइड ऑफेंसिव मिसाइल्स को ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा क्वांटिटी और कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकती हो। हार एरो 3 इंटरसेप्टर जो स्पेस में एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है, उस मिसाइल से कई गुना महंगा होता है। हर थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत $15 मिलियन है। इसके मुकाबले में ईरान के सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो चाइना से आने वाले रॉ मटेरियल्स के ज़रिए डोमेस्टिकली बन रहे हैं, काफ़ी कम कॉस्ट पर तैयार हो जाते हैं। इस आर्म्स रेस की कोल्ड इकोनॉमिक्स मिसाइल बनाने वाले को फ़ायदा देती है, शील्ड लगाने वाले को नहीं, और ईरान इस एसिमेट्री को दुनिया में सबसे बेहतर समझता है। इसीलिए 2000 मिसाइल्स का नंबर सिर्फ एक स्लाइड पर लिखी हुई फिगर नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और जब इस मिसाइल आर्सनल को न्यूक्लियर डायमेंशन के साथ देखा जाता है, तस्वीर और भी ज़्यादा परेशान कुन हो जाती है। ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल्स फितरतन न्यूक्लियर केपेबल हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2011 में ही डॉक्यूमेंट किया था कि ईरान ने शहाब 3 मिसाइल को न्यूक्लियर पेलोड के लिए मॉडिफाई करने पर काम किया। मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खमेनी ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स की डेवलपमेंट की इजाज़त दी। अगरचे वेस्टर्न और इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि 12 दिन की जंग के बाद वेपन्स ग्रेड इनरिचमेंट में कोई डिसाइसिव प्रोग्रेस नज़र नहीं आई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ओमन टॉक्स के दौरान ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट को पूरी तरह बैंड करने के अमेरिकन मुतालिबात को रिजेक्ट कर दिया, जबकि कुछ कंडीशंस के तहत इनरिचमेंट लेवल्स पर बात करने का इशारा दिया। राफेल ग्रोसी ने हाल ही में वार्निंग दी कि इंस्पेक्टर्स ने ईरानियन साइट्स पर सस्पिशियस मूवमेंट्स डिटेक्ट की हैं और स्ट्राइक्स के बाद ईरान का इंटरनेशनल मॉनिटर्स के साथ कोऑपरेशन कम हो जाना वेरिफिकेशन को मुश्किल बना रहा है। अगर एक मैसिव मिसाइल फोर्स किसी भी किस्म की रूडिमेंट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ कंबाइन हो जाए तो ये मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। ईरान की पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन डिटरेंस बाय पनिशमेंट पर मबनी है। तेहरान जानता है कि वो कन्वेंशनल टर्म्स में अमेरिका या इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हस्की एयरफोर्स 1970s के पुराने एयरक्राफ्ट पर चल रही है, नेवी अमेरिकन कैरियर ग्रुप्स का मुकाबला नहीं कर सकती, और आर्मी के पास मॉडर्न ग्राउंड वॉरफेयर की प्रिसीजन और कम्युनिकेशंस नहीं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स 21st सेंचुरी का ग्रेट इक्वलाइजर हैं। ये रिलेटिवली सस्ते हैं, अंडरग्राउंड इंडेफिनिट स्टोरेज के काबिल हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म से मिनट्स में लॉन्च हो सकते हैं, और जब सफिशेंट वॉल्यूम में एक ही वक्त फायर किए जाएं तो किसी भी एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम कर सकते हैं। 2000 मिसाइल्स का सिमल्टेनियस लॉन्च इंटरसेप्शन के लिए लगभग मैथमेटिकली इम्पॉसिबल सिनेरियो पैदा करता है। कुछ मिसाइल्स गिराए जाएंगे, काफ़ी गिराए जाएंगे, लेकिन काफ़ी मिसाइल्स फिर भी गुजर कर सिटीज़, मिलिट्री बेसिस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन लाइफ को कैटास्ट्रॉफिक नुकसान पहुंच सकते हैं। ईरान के पहाड़ों के नीचे बने टनल्स रोज़ बरोज़ मिसाइल्स से भरते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज 24/7 शिफ्ट्स में चल रही हैं। चाइना से आने वाले शिप्स बंदर अब्बास पर डॉक करते जा रहे हैं, लीगल ग्रे जोन्स और फ्रंट कंपनीज का सहारा लेकर प्रोडक्शन लाइंस के लिए रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं। हर हफ्ता स्टॉक पाइल बढ़ता है, हर महीना थ्रेट और तेज़ हो जाता है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक फरवरी 2026 में इस वक्त मिसाइल काउंट 1800 से 2000 के दरमियान है और ट्रजेक्ट्री सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। ईरान की लीडरशिप ने अपनी नियत पब्लिक स्टेटमेंट्स, मिलिट्री परेड्स, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी टूर्स और प्राइवेट डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस में वाजे कर दी है। ये ब्लफ नहीं है,
یہ بلڈ اپ ہے اور اس سپیڈ سے ہو رہا ہے جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ تہران کسی دور کے کانفلکٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک قریبی اور ممکن جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے. وہ ہو چکا ہے اور ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ تیزی سے. اصل سوال یہ ہے کہ ڈپلومیسی، سینکشنز، کوورٹ سابوٹاج یا ملٹری فورس میں سے کوئی بھی چیز اس آرسنل کو اس سائز تک پہنچنے سے پہلے روک سکتی ہے یا نہیں جہاں سے اسٹریٹجک بیلنس پرماننٹلی شفٹ ہو جائے. کیونکہ جب وہ تھریش ہولڈ کراس ہو گیا، جب 2000 یا اس سے زیادہ میسائلز پہاڑوں کے نیچے ریڈی کھڑے ہو گئے اور پروڈکشن بیس لاسز سے تیز ریپلیس کر سکنے لگا، تو اس ریالٹی کو پلٹنا آسان نہیں ہوگا. شیلڈ مکمل ہو جائے گا، ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو جائے گی، اور جیروسلم سے واشنگٹن تک، ریاض سے یورپ کی کیپٹلز تک جنگ شروع کرنے کی قیمت شاید برداشت سے باہر ہو جائے. یہی ایران کی بیٹ ہے. اور اسی وقت جب آپ یہ سن رہے ہیں، وہ شیلڈ ہر دن زیادہ اونچا اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کلاک چل رہی ہے، اور ہر گزارتا دن، ہر شفٹ چینج، ہر شپ جو بندر عباس پر ڈاک کرتی ہے، اس آواز کو اور تیز کرتا جا رہا ہے.